Okay, beta. So what is internal resistance? How do we define it yesterday? Internal resistance क्या थी? Ratio of lost voltage inside the cell to flow of current through it. So we say ratio of lost voltage in cell to current through it. Okay, why we are using this definition? Because we know resistance is equal to V over I. So resistance is equal to potential difference over current. But as this is internal resistance of a cell, so let's say its symbol is like this. This is R and this is E. And this is the symbol of a cell, which is a voltage source in terms of resistance R. Okay, so let's say what's going to happen is, if there is a variable resistor installed over there and we have a voltmeter around it as well. This is ammeter. So when you change the circuit resistance, like this is the circuit resistance R. So when you're going to change this resistance, what is going to happen? We know about two relation, and current is inversely proportional to R and V is directly proportional to R. So we know कि जब आप इस R resistance को change करोगे, circuit की resistance को, let's say you are increasing the circuit resistance. So when you are increasing the circuit resistance, the current is going to decrease. ऐसे ही है ना? The current is going to decrease. And when you have increased the resistance, so voltmeter reading is going to increase. This is one effect. कि अगर आप R बढ़ाते हो, if R is increased, तो वी से कि R इंक्रीज होने का इफेक्ट मीटर रीडिंग के ऊपर क्या आएगा? वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, जबकि एम मीटर रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी. ऐसे ही है ना? अब अगर हम इसका अपोजिट करते हैं, इफ वी डिक्रीज दिस R इज डिक्रीज्ड, तो फिर क्या होएगा? लाइक दिस इज वेरिएबल रेजिस्टर, इसकी एक रेंज ऑफ रेजिस्टेंस है, तो हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होएगा? उससे ये होएगा कि when you decrease this resistance, so the current is going to increase. ठीक है? So इसमें हम ammeter reading जो है वो increase हो जाएगी, and when this R decreased, then of course voltmeter reading is going to decrease as well. तो voltmeter reading जो है वो decrease हो जाएगी. Right? This is one common sense thing. अच्छा, अब next, when you are changing R, so it is affecting current of the circuit. We have to look upon current only now. And how that current will change the lost voltage inside the cell. So देखो, अगर हम R let's say increase कर रहे हैं, current decrease हो रहा है, तो जो current यहाँ से आ रहा है वो decrease हो रहा है. यही करंट R में से गुजर रहा है और यही करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर से भी गुजर रहा है. येस्टरडे वी लुक्ड अपॉन कि भाई वोल्टेज V इज इक्वल टू IR होता है, तो जो लॉस्ट वोल्टेज है वो क्या होंगे? लॉस्ट वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज लॉस्ट इनसाइड द सेल, दैट इज करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने यही इसी से इसको डिफाइन भी किया, रेशियो ऑफ लॉस्ट वोल्टेज इन सेल टू करंट थ्रू इट. ओके, सो देखो, अगर तो ये R तो कांस्टेंट है, दिस इज फिक्स बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स ही होती है, वो तो नहीं चेंज हो सकती, क्योंकि वो तो सेल के अंदर कंपोनेंट्स की वजह से है. R जो है ना, दिस R इज गोइंग टू चेंज, इट कैन वेरी. और ये I कैसे वेरी हो सकता है? दिस I डिपेंड्स ऑन द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस. अब देखो, अगर हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज, तो करंट क्या होएगा? इंक्रीज हो जाएगा. यू आर डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, सो करंट इज इंक्रीज्ड. लेट्स से रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई टोटल, इसको आपने डिक्रीज किया, करंट बढ़ गया. जब बेटा करंट बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होएगा? लास्ट वोल्टेज के साथ क्या होएगा? वो भी इंक्रीज हो जाएंगे. तो दिस लास्ट वोल्टेज इज गोइंग टू इंक्रीज. अब यू हैव टू मेक अ सेंस ऑफ इट.
I have written too many things, but these are very simple things, right? So again, if you decrease this resistance, according to this relation, current in circuit is going to increase. If current increases, R to constant hai, if current increases, then more voltage are going to be lost inside the cell. But what is the opposite of it? If you increase the resistance, if you increase this resistor, then the total resistor in the circuit increases. What is the total resistance? It is this R plus this small r. This is the total resistance. And we know that bhai, this small r is constant, but this is variable. You can change this. And this is constant. This cannot be changed. So it means if you increase that resistance, then the current is going to decrease. If current is going to decrease, then the last voltage in the cell are also going to decrease. So this is the first explanation which you will be writing. The first thing, अभी जो मैंने आपको बताया, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, you will answer it. और आंसर क्या लिखेंगे? जो मैंने आपको अभी बताया है इस रिलेशन के हिसाब से. How changing the external resistor will affect the lost voltage, right? How changing the external resistor in the circuit is going to affect the lost voltage. Explain it. तो ये 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन होएगा. So let me write the question. I have already explained. You will try to answer it. So the question is, how changing the external resistor in a circuit will affect the lost voltage inside cell. ठीक है? Explain your answer. Explain, and this is, let's say, 4 mark question. ठीक है? क्वेश्चन लिखो और अभी मुझे आंसर लिख के दिखाओ सब लोग. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, पहले समझो, इसको समझ के लिखना है. ये नहीं कि जो बता रहे हैं उसको ज़हन में रख लो वही लिख दो. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये बताओगे, ये सर्किट ऑफ कोर्स ऊपर बना होगा और नीचे एक पार्ट में उसने ये पूछा होगा कि बताओ कि हाउ चेंजिंग दिस रेजिस्टेंस इज गोइंग टू अफेक्ट द लॉस्ट वोल्टेज इनसाइड द सेल, और हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द सेल. एफिशिएंसी कैसे? अगर लेस लॉस्ट वोल्टेज होंगे तो मोर एफिशिएंट होगी बैटरी या सेल, क्योंकि उसने आपको एनर्जी ज़्यादा देनी है, लूज़ कम करनी है. और अगर वो लेस एफिशिएंट होगी तो इट मीन्स वो ज़्यादा लूज़ कर रही है बैटरी और आपको कम आउटपुट दे रही है. ऐसे ही ना, तो हम लेस एफिशिएंट. तो दिस क्वेश्चन कैन बी मॉडल्ड इन टू अदर वर्ड्स एज वेल, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एज वेल. ठीक है? मतलब देखो, आपने ये समझना है कि क्वेश्चन इसी तरह का नहीं आएगा. क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, वो और वर्ड्स भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसकी थीम यही होएगी कि आप एक्सटर्नल रजिस्टर को जब चेंज करते हो तो उसका इम्पैक्ट सेल के ऊपर क्या आता है. पहला पार्ट मैं ये लिख रहा हूँ कि लॉस्ट वोल्टेज पे क्या आ रहा है, क्योंकि मैं अभी आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स का कह रहा हूँ कि डायरेक्ट इसको देख के लिखो. नेक्स्ट थोड़े से ट्रिकी वे में मैं इसको लिखता हूँ. तो आपने क्या करना है, आपने ये रिलेशन कोट करने हैं. जब भी एक्सप्लेन आएगा, यू ऑलवेज हैव टू कोट दीज रिलेशंस, नॉट इन वर्ड्स बट इन सिंबल्स लाइक दिस. एक्सप्लेन में हमेशा ये लिखना होता है आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वी प्रोपोर्शनल टू आर, और वी इज आई आर. ऐसी इक्वेशंस 1 या 2 लाजमी लिखनी होती हैं उसमें, तब मार्क्स मिलते हैं उसके. ठीक है? क्योंकि एक्सप्लेन मीन्स यू हैव टू टेल एवरीथिंग इन डिटेल. तो यूल बी राइटिंग एज वी इंक्रीज और डिक्रीज वट एवर, क्योंकि उसने कहा है कि हाउ चेंजिंग द एक्सटर्नल, उसने ये नहीं कहा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो हाउ चेंजिंग कह रहा है तो इट मीन्स आप जो मर्जी लिख दो. कोई लिख देगा कि अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, कोई लिखेगा मैं डिक्रीज कर रहा हूँ. तो दोनों, आप दोनों भी लिख सकते हैं या एक भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर वो स्पेसिफिक होता कि हाउ इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टर और हाउ डिक्रीजिंग, फिर आपको वही लिखना था. राइट? दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि वो क्या पूछ रहा है, देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर. क्वेश्चन को 1-2 दफा पढ़ के फिर लिखना है. ओके, सो एज आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो एज रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, सो द सर्किट करंट विल डिक्रीज, एंड सिंस लास्ट वोल्टेज इज आई इनटू स्मॉल आर, या फिर उससे आप ये लिख सकते हो कि लास्ट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू आई, सो एज करंट डिक्रीजेस लास्ट वोल्टेज आल्सो डिक्रीजेस. राइट? चलो लिख के दिखाओ बेटा. ये
अच्छा देखो, ये दोनों जो सर्किट्स है ना, ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाए हैं आपको ये समझाने के लिए कि देखो इसमें टू रेजिस्टर्स हैं, इसमें वेरिएबल रेजिस्टर और फिक्स्ड है, इसमें सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टर है। तो इसमें जो एक प्रॉब्लम आती है वो रीडिंग की आती है, स्पेशली वोल्ट मीटर रीडिंग की, वो आपको तंग करेगी। एम मीटर रीडिंग वुड नॉट बॉदर यू, would not challenge you. क्यों? Because we know Ohm's law I inversely proportional to R होता है. So if you increase the variable resistance, so total circuit resistance goes up, increases, so the ammeter reading goes down, so this reading decreases. When we say this reading decreases, what does that mean? That means the current in the battery decreases. Like the total current which is flowing in the circuit or current in the battery also decreases. ऐसे ही है ना? Because this is series circuit. In series circuit current remains same. तो अगर एमीटर रीडिंग डिक्रीज होती है तो इसका क्या मतलब है कि यहां पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट क्या हो गया? डिक्रीज्ड हो गया, राइट? जब वो करंट डिक्रीज हुआ है तो यहां पे जो लॉस्ट वोल्टेज होते हैं, जो वेस्ट होते हैं आई आर, तो जब करंट डिक्रीज हो जाएगा तो लॉस्ट वोल्टेज भी क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। बैटरी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी, राइट? दिस इज वन थिंग विच वी आर लुकिंग अपॉन। इज दिस थिंग क्लियर? हाँ, नेक्स्ट वोल्ट मीटर रीडिंग का देखते हैं। अब अगर हमने लेट्स से ये रेजिस्टेंस बढ़ाई है, अब ये थोड़ा सा यहां पहले इसका चलो बता देता हूं, ये इजी है। V प्रोपोर्शनल टू R है, तो अब अगर मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करता हूं तो ये वोल्ट मीटर रीडिंग भी इंक्रीज करेगी ऑफ कोर्स। क्यों? ये क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि देखो V प्रोपोर्शनल टू R होता है, आपने R बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस ज्यादा कर दी, तो अब इसको वोल्टेज ज्यादा मिलेंगे। कॉमन सेंस, ओम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू R, राइट? अब इसकी बात करते हैं, इधर क्या होएगा? इधर अगर आप वेरिएबल रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो बेटा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V1। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V, जो ये वोल्ट मीटर बता रहा है। अब बताओ क्या होगा? आपने इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी है। किसकी बढ़ाई है? ये रेजिस्टेंस। अगर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाई है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा ना, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है भाई, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ये वाला इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये वाला वोल्टेज क्या होएगा? फिर डिक्रीज हो जाएगा। ये वोल्टेज डिक्रीज होएगा। क्यों? अब क्या वजह है इसकी? क्योंकि देखो जो बैटरी है वो तो 12 वोल्ट ही है। बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट। लेट्स से उस 12 में से 2 वोल्ट लॉस्ट हो रहे हैं, 2 वोल्ट गए, पीछे कितने बच गए? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इन दोनों को मिलने हैं। तो हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा था सीरीज रेजिस्टर सर्किट, उसमें क्या चीज डिवाइड होती है करंट या वोल्टेज में से? वोल्टेज डिवाइड होता है ना। तो अब क्या होना है कि ये जो 10 वोल्ट बच गए हैं, 12 में से 2 गए, 10 बच गए, वो 10 इन दोनों को मिलने हैं। लेकिन चूंकि इसकी रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दी है तो उस 10 में से इसका शेयर ज्यादा हो गया, राइट? तो इसलिए इसके जो वोल्टेज हैं वो ज्यादा हो गए, और ये जो है इससे वोल्टेज क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। क्यों? हालांकि ये बेचारा फिक्स है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज तो ये हो रहा है, लेकिन जाहिर है भाई वो कह रहा है कि भाई मैं बढ़ गया हूं, मुझे ज्यादा शेयर चाहिए एनर्जी का, तो जो 10 जूल एनर्जी आ रही है उसमें से ये ज्यादा शेयर ले लेगा और इसके लिए थोड़ा बच जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी से कि ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग है अब ये डिक्रीज होएगी। लेकिन यहां क्या होएगा? यहां सेम है। यहां अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो वोल्ट मीटर रीडिंग इसके अक्रॉस इंक्रीज ही होएगी। तो समिंग इट अप, आपने ये देखना है कि V प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अगर जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है, अगर लेट से उसकी रेजिस्टेंस आप बढ़ाते हो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होगा फॉर श्योर। लेकिन उसके साथ जो दूसरा लगा हुआ है जो बेशक फिक्स है, उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले मेरे पास 2 चॉकलेट्स थी और ये 2 रेजिस्टर हैं और ये एक एक उठा रहे हैं, एक ये उठा रहा है, एक ये उठा रहा है, ठीक है? अब ये कहता है भाई मैंने ज़्यादा काम किया हुआ है, मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ये ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है। मतलब जब हमें ज़्यादा भूख लगी होती है हम ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं कि भाई हमें ज़्यादा खाना चाहिए। तो लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब जब मैं 2 रेजिस्टर यहाँ लेके आऊँगा, मैं करंट हूँ, 2 चॉकलेट्स लेके आऊँगा, ये एक उठा लेगा और दूसरे में से भी हाफ उठा लेगा। ये कहेगा मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई है। जब मैं आगे इसके पास जाऊँगा आधी इसके लिए बचेगी, ये बेचारा तो फिक्स है, इसने तो कुछ नहीं कहा, तो आधी इसके हिस्से में आएगी क्योंकि उसने ज़्यादा ले ली है, राइट?
तो रेजिस्टर्स में भी सेम ये होता है कि अगर दो रेजिस्टर बिल्कुल इक्वल हो तो दोनों को इक्वल वोल्टेज मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक को बढ़ा दो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज का शेयर बढ़ जाता है। और चूंकि बैटरी के वोल्टेज तो बढ़ नहीं रहे, वो तो उतने ही हैं, इसलिए जब एक को आप उसी बैटरी में से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो दूसरे के हिस्से में क्या रह जाएगा, लेस वोल्टेज रह जाएंगे। सो दिस इज द थिंग विच यू आर आस्किंग रानिया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है तो वोल्टेज के अंदर नहीं, वो अलग चीज़ है। बस आप अभी इसको यहाँ तक रखो, जो मैंने ये रिलेशन बताया सिर्फ इधर तक रखो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बस इसको रखो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक तो आपने इसका आंसर लिख के मुझे दिखाना है, और एक ये दोनों सर्किट बना के और नीचे ये रीडिंग लिख लो। इसकी रीडिंग क्या लिखनी है आपने, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप आराम से लिख लो इसको। हाँ बस, बाकी तो ठीक ही है। ये लिख लिया ना, आंसर लिखो बेटा उसका। आंसर लिखो बेटा जल्दी से, बस इसको रैप अप करते हैं। अब इसकी इक्वेशन और ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह आप डे आफ्टर टुमारो जब आएंगे ना तो हम लैब में चलेंगे और इसी का प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो सेक्शन बी होता है ना, सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए तो इजी होता है, सेक्शन बी में ग्राफिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसका फिर हम एक एज इट इज़ जो अभी हम कर रहे हैं इसी का प्रैक्टिकल करेंगे। यही इसी तरह रीडिंग लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और वहीं से हम बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस और जो अभी पढ़ रहे हैं ना यही प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन में कर लेंगे। हाँ तो खैर है, क्या हो गया, सेशनल क्लास टाइम में तो नहीं है ना। हाँ तो बस 1 बजे शुरू होगा ना, आप क्लास तो वो क्लास तो आपकी नॉर्मल होएगी ना। सेशनल इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्लास टेस्ट, बस ठीक है। कोई उसमें जो पढ़ रहे हैं नॉर्मल वही पढ़ना है, उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। ओके बेटा देखो, इसकी इक्वेशन में क्या लिखूंगा, इनपुट इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट प्लस वेस्टेड। अच्छा, ये क्या चीज लिखी है बेटा मैंने, कैन समवन टेल मी, ये जो स्टेटमेंट है ये वाली क्या है, ये इनपुट इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट प्लस वेस्टेड, जल्दी। एफिशिएंसी, या फिर कोई भी सिस्टम जो काम करता है उसमें हमेशा ये चीज होती है, हमेशा। लाइक मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस पे ये इक्वेशन आएगी, इनपुट, आई एम गिविंग यू इनपुट, सम ऑफ माई इनपुट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल आउटपुट, जो आप समझ जाओगे कि अच्छा, कुछ लोग समझ जाएंगे कि ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझना चाहेंगे, वो वेस्टेड, वो अमाउंट वेस्टेड चली गई, राइट। तो एफिशिएंसी हर सिस्टम की होती है ना, इस क्लास की भी एफिशिएंसी है। ज़्यादा लोगों को समझ आएगी, एफिशिएंसी हाई हो जाएगी, कम लोगों को समझ आएगी, एफिशिएंसी लो हो जाएगी। इसी तरह कार में है, पेट्रोल डलवाते हैं, इनपुट जो है वो केमिकल एनर्जी है, यूजफुल आउटपुट काइनेटिक ऑफ कार होती है, और वेस्टेड क्या होती है, साउंड और हीट एनर्जी वेस्टेड होती है, राइट। इसी तरह जो सेल है, सेल के अंदर जो इनपुट है वो उसकी टोटल केमिकल एनर्जी है या ईएमएफ है, कि भाई 12 वोल्ट इसकी ईएमएफ है, लेकिन उसमें से वो हमें यूजफुल कितना दे रहा है और वेस्ट कितना कर रहा है। तो बेटा जो वेस्ट होएगा ये क्या होएगा, किस फॉर्म में होएगा, इसमें हीट की फॉर्म में, ठीक है। और वो हीट किधर प्रोड्यूस हो रही होएगी, सेल के अंदर, किधर, सेल के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस में, यहां ये, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द सेल। तो इसका मतलब है कि जो वेस्टेड है वो होएगी हीट लॉस्ट इनसाइड सेल। और बेटा ये क्यों हीट लॉस हो रही है, इसकी वजह क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या रीजन है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रीजन इसकी हम लिखेंगे कि भाई इसकी रीजन आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। अब हम इसको ये कहते हैं कि अच्छा, यूजफुल आउटपुट किस फॉर्म में होएगी, ये बताओ, यूजफुल आउटपुट एक्सटर्नल रेजिस्टर में जो आएगी। तो जो भी वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टर में लॉस्ट होंगे वो हमेशा यूजफुल होंगे, क्यों,
क्योंकि भाई ये आर हमने खुद लगाया हुआ है, हमें इसके अक्रॉस एनर्जी चाहिए। अगर इमेजिन करो ये हीटर है, क्या हीटिंग एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक केटल है या इलेक्ट्रिक आयरन है या हेयर ड्रायर है, उसमें ये हीटिंग कॉइल है। तो हीटिंग कॉइल ये रेजिस्टर है, तो हमें हीटिंग कॉइल से क्या चाहिए, क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए ना। सेल की हीट हमें नहीं चाहिए भाई, सेल तो बाहर लगा हुआ है, वो उसकी हीट का हमने क्या करना है, हमने हीट वो हमारे लिए यूजफुल है जो एक्सटर्नल रेजिस्टर के क्रॉस हो रही है। तो दैट्स वाई हम इसको कह देंगे हीट डेसिपेटेड। अच्छा देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो हीट लॉस्ट है, ये हीट डेसिपेटेड यूजफुल है। क्यों? क्योंकि वो सेल जो है वो तो अलग से लगा हुआ है ना, उसकी हीट तो हम तक पहुंच ही नहीं रही, इसलिए तो वो एनर्जी लॉस हो रही है। और जो ये हीटर है इसकी डेडिकेटेड हीट हम तक पहुंच रही है, दैट्स वाई हमें वो हीट चाहिए, राइट। अगर हम किसी तरीके से सेल की हीट भी इधर ले आए तो फिर ठीक है, फिर वो यूजफुल हो सकती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप सेल को हीटर के बहुत क्लोज रखोगे तो सेल वैसे ही हीट अप होकर उसकी रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी और वो एक्सप्लोड भी कर सकता है। इसलिए हमें सेल को हीटिंग सोर्स से दूर रखना होता है हमेशा। ओके अच्छा, इनपुट किस फॉर्म में है? क्यों भाई आप इनपुट बताओ, सेल के अंदर इनपुट एनर्जी किस फॉर्म में पड़ी हुई है? केमिकल की फॉर्म में पड़ी हुई है। दैट्स व्हाई वी से यहां पे केमिकल एनर्जी है। ये आपको मैंने एक एनर्जी का प्रोस्पेक्टिव बता दिया, क्योंकि बेटा वो आपसे एनर्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें एक बात ये पता लगी कि भाई सेल में केमिकल एनर्जी होती है जो इनपुट होती है, और हमें जो आउटपुट है वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकती हैं। यहाँ पे हीट की बजाय लाइट भी हो सकती है अगर यहाँ लैंप लगा हो। भाई आप यहाँ लैंप लगा दो, जब आप लैंप लगाओगे तो आपको लाइट चाहिए, उससे लाइट यूजफुल होएगी। तो इसलिए यूजफुल की कोई भी फॉर्म हो सकती है, यूजफुल की रोटेशनल भी हो सकती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोटर्स में, लेट्स से आप यहां लैंप भी लगा सकते हो, आप यहां मोटर भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो ना। तो जो भी वहां से आउटपुट मिल रही होगी वो यूजफुल होगी आपके लिए। अच्छा ये तो एनर्जी की सेंस में हो गया, अब हम करते हैं वोल्टेज की सेंस में। तो बेटा ईएमएफ इज इनपुट, आउटपुट वोल्टेज जो इसके अक्रॉस आपको मिल रहे होते हैं उसको, जो चूंकि आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं बैटरी से बाहर, इसलिए इसको कहते हैं आउटपुट वोल्टेज, वी आउट, जो सेल से बाहर आपको मिल रहे हैं, प्लस ये जो होता है वेस्टेज, इसको वोल्टेज लॉस्ट कहते हैं, वी लॉस्ट, राइट। अब इसकी एक और फॉर्म हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ इज, वी आउट को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे लग रहा है ये मैंने कल भी लिखा था, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लॉस्ट वोल्टेज को हम लॉस्ट वोल्टेज ही लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ओम्स लॉ की सेंस में लिखूं तो इसको मैं ई लिखूंगा, इसको कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर, आर एक्सटर्नल रेजिस्टर होता है, इसको कैपिटल आई इंटू आर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इस तरह भी लिख सकता हूं। तो अब मुझे एक एक्सप्रेशन यहां लिख के दिखाओ करंट का, करंट का एक्सप्रेशन क्या होएगा यूजिंग दिस, इसको यूज करके लिखो जरा, आप खुद लिखो करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कि भाई इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसको देख के जरा लिखो। लिख लिए? तो इसमें से आई को सब्जेक्ट बनाओ, मतलब थोड़ी वर्किंग खुद करो ना, आई को सब्जेक्ट बनाओ और वो आर प्लस आर आएगा उसको दूसरी साइड पे भेज दो। तो ये जो करंट आएगा आपके पास, ये ईएमएफ ओवर आर प्लस आर आएगा, यही है ना। इसका आंसर नहीं चेक किया हमने, अच्छा चलो मैं देखता हूँ क्या। Okay, ji, let's do a quick example in which we will be looking upon this. ये so let's say हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है इस किस्म का, ये 3 वोल्ट है, ये जो है ये 5 ओहम है, और ये हमारे पास है 1 से लेकर
10 ओहम तक, ये वेरिएबल रजिस्टर है। अब 1 ओम तो होता ही नहीं है, लेकिन हम थोड़ा कैलकुलेशन को समझने के लिए इसको इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। 1 से 10 ओम तक ये 3 वोल्ट है और ये 5 है। यहाँ एमीटर रीडिंग है और यहाँ आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ओके, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, सीरियल नंबर मतलब रीडिंग्स। फिर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ टोटल आर लिखूँगा कितनी है, फिर मैं लिखूँगा सर्किट में टोटल करंट कितना है एम्पेयर में, इसको फिल इन करना है। उसके बाद मैं लिखूँगा कि वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी है, जिसको वी आउट कहेंगे वोल्ट्स में। फिर मैं लिखूँगा लॉस्ट वी एल इज़ लॉस्ट वोल्टेज, इसकी वैल्यू लिखूँगा। और फिर मैं लिखूँगा पावर इन, और आखिर में लिखूँगा पावर आउट। तो ये इतनी चीज़ें हमने करनी है। मतलब थोड़ा बड़ा टेबल बना लो, पूरे उस पेज के ऊपर बना लो, ऐसे ही सेम ओरिएंटेशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ़्ट टू राइट। अब इसमें हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले मैं ये करूँगा 1 2 3 और एटलीस्ट 4 रीडिंग्स मैं लेता हूँ। आफ्टर डूइंग दिस यू विल बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूलाज सक्सेसफुली। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। ओके, फर्स्टली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये जो रेजिस्टेंस है इसको 2 ओम रख रहा हूँ। सेकंड में मैं इसको करूँगा 3 ओम, नहीं, पहले मैं ये करता हूँ इसको 2.5 करता हूँ, फिर मैं इसको 5 करता हूँ, फिर 7.5 करता हूँ और फिर 10 करता हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने वेरिएबल रजिस्टर को चेंज किया। अब आगे आपने सारा फिल करना है खुद से। सिर्फ हमें आर पता है, कैपिटल आर, बाकी आप चीज़ें खुद फिल करोगे। कैसे? टोटल रेजिस्टेंस आपने करना है तो आपको पता है आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। करंट आपने निकालना है, आपको पता है ओम्स लॉ है, आपको ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। वी आउट जो है वो टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टर करना पड़ेगा। कैपिटल आर एक्सटर्नल, स्मॉल आर इंटरनल। अगर आपने लॉस वोल्टेज निकालने हैं तो वी एल इज आई स्मॉल आर करना पड़ेगा। पावर इन का मतलब है कि ये सेल कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल आई ई। क्यों? क्योंकि देखो पावर इज आई वी होता है, तो पावर प्रोड्यूस्ड अगर निकालनी हो ना, पावर प्रोड्यूस्ड कि भाई वो बैटरी कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो हम बैटरी जो में से जो करंट है और बैटरी की जो ईएमएफ है वो यूज करते हैं, जो बैटरी के वोल्टेज होते हैं। आई हमेशा करंट इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी, उससे पता लग जाएगा कि हाउ मच पावर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। उसके बाद जो दूसरी टर्म यूज होती है वो यूज होती है पावर डेसिपेटेड और पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन हमेशा रेजिस्टर्स के अक्रॉस होती है कि भाई रेजिस्टर्स कितनी पावर कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिपेट कर रहे हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है मल्टीपल होता है, वो आप आई स्क्वायर आर से भी कर सकते हो, वी स्क्वायर बाय आर से भी कर सकते हो, या आई वी से भी कर सकते हो। आई वी क्या होएगा, उस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है और उसके अक्रॉस, उस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितने हैं, राइट। आई स्क्वायर आर क्या होगा, उसमें से करंट कितना गुजर रहा है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। वी स्क्वायर बाय आर होगा उस रेजिस्टर के अक्रॉस कितने वोल्टेज हैं और डिवाइडेड बाय उसकी कितनी रेजिस्टेंस है। तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज, बट फॉर पावर प्रोड्यूस देयर इज ओनली वन विच इज आई ई, राइट। तो वो आप यहां पे करोगे। अब आप इसको जल्दी से जरा सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो, शाबाश। फॉर यू, so let me solve the first row for you. Total resistance means ke first you kept this as 2.5 and as this and this are in series, so you are going to add them. 5 plus 2.5 is 7.5, right? Then current. So for the current what you're going to do is you are going to divide EMF with total resistance. So EMF is 3. So EMF is 3 and total resistance is what? 7.5. So 3 over 7.5, 0.4. So you'll be writing 0.40, not 4 but 40, 2 sig fig. Then
वी आउट देखो बेटा, एक दफा देख लो, जिसको नहीं समझ आ रही है तो अब करते जाओ खुद. V naught is IR. I is total current, which is this, and R is this, because this is external resistor R. So 0.4 into 2.5 करो, ठीक है? VO is IR. So this is 0.4 into this R, 2.5. So this is how much? 1.0. So 1.0 is here. This V lost can be determined by using two ways. One is V lost is IR. I is 0.4 and R is 5. So it will be 2. So it will be 2. This is the first way. The second way is EMF is equal to V out plus V lost. So shift this to other side. It will be EMF minus V out is V out. EMF is 3 and V out you just have calculated 2. So 3 minus 2 is 1. So आप इस तरह भी VL कैलकुलेट कर सकते हो. So two ways to find lost voltage. अच्छा, अब power in is IE. I is this and E is 3. So 0.4 into 3, that will be 1.2 watt. Right? Next is power out. Out power means the power that you are getting here across this resistor. So इसके across जो power होएगी वो आप कैसे निकालोगे? That power is I, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, खैर power dissipation is I square R, V square R, IV, whatever you like. Let's say अगर मैं IV use करता हूँ, power out is IV, so the current is 0.4 and V mean voltage across this resistor which is 1. ठीक है? So इसको मैं 1 लिख दूंगा, so power will be 0.4 watt. It means 0.4. It means there is big problem here. Battery is producing 1.2 watt, but you are getting only 0.4. It means it is less efficient. ठीक है? क्योंकि भाई जितनी पावर बैटरी प्रोड्यूस कर रही है आपको बाहर उसके करीब करीब तो मिले ना, ये तो बहुत कम मिल रही है, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होएगी. कितनी होएगी एफिशिएंसी? नहीं, कितनी होएगी अमाउंट? हाउ यू फाइंड एफिशिएंसी? आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100. सो आउटपुट इज 0.4, इनपुट इज 1.2, सो 0.4 ओवर 1.2 into 100, 33%. So its efficiency, battery's efficiency in this scenario is only 33%. ठीक है? This is first. अब जरा second, third, fourth खुद निकालो, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश. Lost voltage सोचो ना, I into small r, क्योंकि lost voltage है ना, that's why we do I into small r. हाँ, पावर इन, ये लिखा सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है यार. पावर प्रोड्यूस्ड, पावर इन IE, I V होता है ना, तो V की जगह मैंने E लिख दिया है, बैटरी की EMF. Okay भाई, अब्दुल मुईज़ इज़ हियर, अब्दुल्ला अमर, आयान नहीं है, अहमद रज़ा दुआ, ईसा ख़ान, अनाया, फ़ातिमा, हमद, हसन ताहिर, अम्बल, मुईज़ ख़ान,
अब्दुल्ला शहजाद, अहमद रज़ा, ईसा एजाज, इब्राहिम सुहेल, उबैद, मूसा, राफ़े, मुसाब। चलो बेटा वाइंड अप करो। मुस्तफ़ा, रानिया, रिमल, रोहान, सोफ़िया, सैयद अली ज़ुल्फ़कार, सैयद फ़सीह अली, अब्दुल्ला, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, नबीहा, मामून, माहद, उशना, ज़ैनब, ज़िमल, ज़ोया। ओके चलो बेटा इसके आंसर फिर देख लेना, खुद सॉल्व कर लो। कल चूँकि ऑफ है तो थोड़ा सा काम कर लो बेटा इसके ऊपर, जो वर्कशीट के ऊपर, क्योंकि सेशनल में अगेन आई एम टेलिंग यू इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी मैं आपको अभी असाइनमेंट भेज दूंगा आज, ठीक है।